بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، عشر ذی الحجہ پر کچھ گفتگو ہم کر رہے تھے۔ اس سے پہلے دو نشستیں گزر چکی ہیں۔ عشر ذی الحجہ کی فضیلت میں ایک بہت بڑی چیز فضیلت یہ ہے دوستو کہ حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ یہ مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت بسند صحیح۔ غور کریں ذرا، نبی علیہ السلام نے کس طرح سے فضیلت حاصل کرنے کی رغبت دلائی۔ دوستو، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ لوگوں، دنیا میں جتنے دن بھی آتے ہیں سال کے، سال میں جتنے دن، ایام الدنیا سے مراد جب تک دنیا قائم ہے، یا یوں سمجھے سال بھر میں افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اس دنیا میں جو تمہیں ایام نصیب ہیں، دن، سال، مہینے، ہفتے، یہ تمہیں جو ایام دن ملے ہوئے ہیں زندگی کے، آنے فرمایا پورے سال کے یا تمہارے زندگی کے سب سے افضل ایام جو ہو سکتے ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ تمہارے زندگی میں جو ایام آتے ہیں جس میں تم زندگی گزار، کھانا پینا سونا اٹھنا کاروبار، ساری زندگی کے اوقات گزار رہے ہو، یاد رکھنا سب سے زیادہ خیر و برکت اور افضل دن جو آتے ہیں، اللہ رسول فرماتے ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ سوچو کتنی بڑی غفلت ہوتی ہے۔ آج کسی نے 12 ربیع الاول کو سب سے بڑی خیر و برکت کا دن رکھا ہے، کسی نے شعبان کی 15 تاریخ کو سب سے زیادہ ایام افضل دن بنا رکھا ہے۔ دیکھیں، کسی نے عاشورے کا دن ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن ایک دن ہے بس، عاشورے کے ایک دن کی فضیلت۔ یہاں تو پورے 10 دن کی افضل ایام الدنیا ایام العشر، پورے 10 دن اتنے فضیلت والے دن نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں ایک چیز سمجھیں، ہمارے سننے والے سامعین ہے جو ناظرین ہیں، ان کے دل میں بات آتی ہوگی، ارے مولوی صاحب نے تو عجیب بات بتا دی، ہم تو یہی سنتے رہے کہ سب سے افضل ایام کیا ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ، اور آج پر نئی بات معلوم ہو گئی کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر ہے، تو شاید کہ ذہنوں میں کچھ تشویش اور کچھ احساس ہوتا ہو، تو ایک چیز بتائیں گے۔ کہا جاتا ہے تمام اہل علم، فقہا، محدثین، علماء کہتے ہیں کہ رات کا اگر حساب لگایا جائے تو پورے سال میں سب سے افضل راتیں جو ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی ہیں، آخری عشرے کی۔ لیکن دن اگر اندازہ لگایا جائے تو کہتے ہیں رمضان کے جو 10 دن ہیں کوئی شک نہیں کہ فریضہ روزہ ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی جو چاہے وہ کرے، یختار لمن یشاء، جس کو چاہے جو فضیلت دے دے۔ تو تمام اہل علم شراح احادیث کہتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ رات کے اعتبار سے ماہ رمضان کا آخری عشرے کی راتیں وہ سب سے افضل ہے، کیوں؟ ان میں لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ لیکن دن
कहते हैं दिन के एतबार से अशरे ज़िलहिज के इब्तिदाई 10 दिन साल भर में सबसे अफजल दिन करार पाए। रात के हिसाब से अब रमजान के आखिरी अशरे की रात है और दिन के एतबार से ज़िलहिज के पहले अशरे के दिन। अंदाजा लगाएं कितनी फजीलत है। उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? कहते हैं हमारे मशाइख शुराह अहादीस उलमा की बड़ा फर्क है। रमजान के आखिरी अशरे में सिर्फ 1 फरीदा और 2 फरीदा अदा होता है, नमाज और रोजा। 5 वक्त नमाज की पाबंदी होती है अरकान इस्लाम में से, और अरकान इस्लाम में से नमाज की पाबंदी होती है, साल भर की इबादत है। लेकिन इजाफी सिर्फ 1 इबादत आती है, क्या? रोजा। इसके बरखिलाफ माहे ज़िलहिज जो है, अशरे ज़िलहिज, इसकी कई फजीलतें हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दिन जमीन और आसमान बनाया उसी दिन अल्लाह ताला ने 4 महीने हुर्मत वाले, इन्ना इद्दत अश्शुहूर इन्ना अल्लाह इस्ना अशरा शहरा यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। रमजान बड़ी फजीलत वाला है लेकिन हुर्मत वाला महीना नहीं, ये हुर्मत वाला महीना है। नंबर 2, इस ज़िलहिज के अंदर तकरीबन सारे फराइद आ जाते हैं। मसलन नमाज भी आ गई, आशूरे का अरफा का रोजा भी आ गया, और सही सुनन सही की रवायत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे कि उम्मुल मुमिनीन रवायत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम बाकायदा पूरे 9 दिन का इस अशरे का रोजा भी रखा करते थे। यौम अरफा को छोड़ करके हज में तो नहीं रखा, लेकिन जब तक हज नहीं करते तो यौम अरफा का भी रोजा है। देखें, इसमें रोजा भी है, नमाज भी है, हज भी है, उमरा भी है, कितनी हुर्मत वाला भी। इसके अंदर बहुत सारी, इस महीने में बहुत सारे नेक आमाल इकट्ठा हो गए हैं। साल में किसी और महीने में, यहां तक कि रमजान में भी इतनी फजीलतें नहीं इकट्ठा हो जाती जितना इस अशरे के अंदर, ज़िलहिज के पहले अशरे में इकट्ठा है। इसी में कुर्बानी है, इसी में हज है, इसी में उमरा है, इसी में तवाफ इफादा है, और इसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यौम अरफा का रोजा जो गैर हुज्जाज है, और अगर नफली तौर पर रखना चाहे तो पूरे 9 दिन का रोजा और रख सकता है। तो इसलिए कहते हैं अफजल अय्याम की वजह यह है। तो अफजल कहते हैं अफजलुल अय्याम, अफजल अय्याम दुनिया अय्यामुल अशरी, सबसे अफजल अय्याम जो है अशरे ज़िलहिज के हैं। इसलिए इन्हीं अल्लाह ताला ने वल फज्र वल लयालिन अशरी वश्शफ़ई वल वत्री वल लैलि इज़ा यस्री, अल्लाह रब्बुल आलमीन मजमूई तौर पर किसी दिन की और किसी महीने और किसी अशरे की कितना कसम नहीं खाई है जितना इस अशरे की कसम खाई है। तो यह है फजीलत की वजह। हमें इस फजीलत को हासिल करने के लिए अब क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मुख्तलिफ असबाब हैं। नंबर 1, आपने सुना होगा कि इस अशरे की फजीलत के लिए जब आपने मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं, कहते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा अमिल इब्नु आदम अमलन, मा अमिल इब्नु आदम अमलन अफज़ल मिन हादिल अय्यामिल अशर। हे लोगों, मा अमिल इब्नु आदम अमलन, आदम की औलाद कभी भी नेक अमल करे, लेकिन मा अमिल मिन हादिल अय्यामिल अशर,
किसी भी दिन इंसान अमल करे, कितना भी अमल करे, लेकिन इन 10 दिनों में अल्लाह ताला को नेक आमाल जितने महबूब हैं, नफली आमाल में किसी और साल में किसी और दिन अल्लाह ताला के नजदीक वो फजीलत हासिल नहीं कर सकता। मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलिन अहब्ब इलैहि मिन हादिहिल अय्यामिल अशर क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह क़ाल वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब अंदाजा लगाइए, आपने फरमाया कि ऐ लोगों, इन 10 दिनों में नेक आमाल को का जो मकाम और मर्तबा और अल्लाह ताला को जितना महबूब पसंदीदा है, अल्लाह जितना अजर सवाब देते हैं, साल में किसी और दिन अमल करने से इतना सवाब हासिल नहीं हो सकता। पूछा गया या रसूलल्लाह वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना भी वो अजर सवाब नहीं मिल सकता जो इस महीने में नेक अमल का? अल्लाह ने फरमाया वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये आप ऊपर वाले का करम, ऊपर वाले का करम। इन 10 दिनों में नेक अमल का जो अल्लाह ताला अजर सवाब बढ़ा चढ़ा करके देते हैं, अगर कोई शख्स जिहाद करने के लिए भी गया है तो उसके जिहाद का सवाब भी इन 10 दिनों में घर बैठ करके नेक अमल करने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, हमारी बहनों, नौजवानों, जरा सोचो कितनी बड़ी गफलत इस अशरे से हम लोग किया करते हैं। मालूम पड़ता है बस कुर्बानी की बकरा खरीद लो और ईद के दिन चले जाओ, इसके अलावा कोई अमल हमें समझ में आता ही नहीं। मा अमल इब्नु आदम अमलन अहब्बु इलैहि मिन हादिहिल अय्यामिल अशर। इन 10 दिनों में नेक आमाल का जो मकाम मर्तबा अल्लाह ताला को के नजदीक है, जितना ज्यादा पसंद है कि अल्लाह ज्यादा पसंद, इन 10 दिनों में आदमी नेक अमल करे, अल्लाह को ये बहुत ही पसंद है। आम दिनों में करे वो भी, लेकिन इन दिनों में अल्लाह ताला जितना पसंद करता है, अल्लाह ने जब नेकियों का सीजन बनाया है तो अल्लाह चाहता है मेरे बंदे उससे फायदा भी उठाए। अगर हम फायदा ना उठाए तो अल्लाह ताला की नेमत की बड़ी नाकदरी होगी। दोस्तों, फायदा उठाओ। अल्लाह से पूछा गया या रसूलल्लाह, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह का भी सवाब नहीं? आपने फरमाया नहीं, हाँ, सिर्फ एक मुजाहिद है, एक मुजाहिद जो अपनी जान, अपना माल, अपनी सवारी लेकर गया, शहीद कर दिया गया, वह ओकेरा जमात हो और उसके सवारी की टांगे काट दी गई और उसका सारा माल काफिरों ने जब्त कर लिया। इस मुजाहिद का सवाब हाँ इन 10 दिनों में नेक अमल करने वाले से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आम मुजाहिद का अमल भी, मुजाहिद का जिहाद और उसका अमल भी इन 10 दिनों में जो आम आदमी फायदा उठाता है, नेक अमल करता है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के जो हुक्म क्या दिया, तहर्रू लिनफ़ात रब्बिकुम, ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने जो खैर बरकत और नेकियों के सीजन मुकर्रर किए हैं, उनका खास एहतमाम करो, इंतजार करते रहो। तो दोस्तों, अभी चंद दिन बाकी हैं, हमें आज ही से बिल्कुल तैयार होकर के इससे मुस्तफीद होने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए और कोशिश करें नफली इबादत से, नेक आमाल के जरिए, सदका से, खैरात से, रोजे से, जितना भी कर सकते हो फायदा उठाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।